everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is this Israeli series that all of you by now must know about. तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको नहीं पता कि इस इसराइली सीरीज क्या है तो I'll just take 1 minute of yours to all those who are following this video and this series. You can skip it. Okay, so now to those who are new, Israeli series एक initiative है that has been taken by Mind Review, wherein your book on psychology, Introduction to Psychology by Sisraeli, White and Misra, इन तीन लोगों ने जो ये बुक कंबाइन करके लिखी है by Pearson Publication. I am here trying to cover entire book of Sisraeli, all the chapters. So till now we have covered chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5. ये first 5 chapters हम detail में already cover कर चुके हैं. Every day from Monday to Friday, videos are posted on this very channel at 7 p.m. where you can sit and start studying along with me. So recently we have started with your chapter 6 also, as you can see, that is your memory chapter. और इसके 3 parts हम already cover कर चुके हैं. In case you have missed out any of these parts या कोई भी पुरानी वीडियो आपको इस सीरीज से रिलेटेड देखनी है, you can go to the description box. Description box में there is a link for the playlist of this Israeli series. As soon as you will click on that link, the playlist will open up and over there I have arranged all the videos in a sequential order from where you can start studying. ठीक है, so that is about a little bit of introduction bit. Now we will continue with our series as usual और आज की जो वीडियो है वो है part 4 of chapter 6. So in part 1, part 2, part 3, we talked about some very important things like the models of memory, the basic definitions that are related to your memory. We also talked about the retrieval processes in memory. And very good to all of you who have done your homework that I gave in part 3. I have also given you all a shout out in the comment section. Well done. ठीक है, so आज हम start करेंगे part 4 of chapter 6 से, and today we are going to talk about an interesting topic that most of us face these days, especially while studying something, that is forgetting. तो forgetting एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है, मतलब भूलना है ना. कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने याद करी थी, जो हमें ऐसा लगा था कि हमारे LTM में चली गई है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई है, वो इंफॉर्मेशन अब जब एग्जाम में लिखने का टाइम आया या इन जनरल किसी को बताने का टाइम आया, suddenly something happens that I'm unable to recall that information. यानी कि उस information का जो retrieval है वो नहीं हो पा रहा. There is some kind of problem in the retrieval because of which my forgetting has occurred. In this video only हम लोग reasons भी देखेंगे कि क्या क्या different reasons है of forgetting, like your proactive interference, retroactive interference or encoding failure or trace decay theory. But before all of those theories, we would be talking a little about forgetting. ठीक है, forgetting से related 2-3 नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. So the first name that we'll talk about is of Brad Williams. I think most of you must have not heard about this name क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है colleges में या फिर in fact in schools also. So Brad Williams was a person who was also referred to as human Google. Okay, so sometimes it might come in MCQ probably. Okay, so Brad Williams was often referred to as human Google. Why? Because he had a syndrome. Okay, he was suffering from a syndrome and the name of the syndrome is known as hyperthymesia. और ये syndrome का नाम MCQs में definitely 2-3 बारी आया हुआ है. Okay, so hyperthymesia नाम के एक syndrome से Brad Williams जो है this person had this particular syndrome. And what happens in this syndrome, क्या होता है अगर किसी को hyperthymesia हो जाए तो. So in hyperthymesia what happens, this is basically depicting a very rare ability. एक बहुत rare ability है जहाँ पे एक individual अपने life के events को, almost every event को बहुत detail में याद रखता है. So this is a rare ability number 1.
Okay, not everybody has it, and very few people suffer from this syndrome also. So a rare ability that actually allows people, you can make notes alongside, that will, make your task of learning or revising later on easy. So rare ability that basically allows people to actually remember the events of their life. Okay, remember nearly every event, not just some events ki mera 10th में जो सरप्राइज बर्थडे पार्टी था वो कैसा था, या 12th के बोर्ड के मार्क्स में कैसे एग्जाम आए थे, नॉट जस्ट दीज इवेंट्स जो मोस्टली शायद सारे लोगों को ही याद रहते हैं, बट ऑल्सो other small details that are related to one's life, they also remember that thing. तो ये एक बहुत रेयर एबिलिटी है. यहाँ पे क्या है, फॉरगेटिंग नाम की चीज को तो ब्रैड विलियम्स ने मात दे दी है ना. दिस पर्सन इज नॉट हैविंग द फॉरगेटिंग. ओके, दिस पर्सन इज नॉट एक्सपीरियंसिंग फॉरगेटिंग वेर इन दे माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल एवरी इवेंट ऑफ देयर लाइफ, है ना. कभी कभी हम सबके साथ हो जाता है भाई, somebody tries to make us remember कि अरे याद है हम लोग वहां पे गए थे and this happened, but it is natural for us to not recall immediately or not recall at all. हम बोलते हैं यार याद नहीं आ रहा, मैं तो भूल गई ऐसा कब हुआ था. But in a syndrome like hyperthymesia that Brad Williams had, over here this is again a ability, a rare ability, जहाँ पे लोग अपने लाइफ के ऑलमोस्ट सारे इवेंट्स को बहुत स्पेसिफिक तरीके से रिकॉल कर सकते हैं as if it has just happened yesterday. So this is also one name that you should know. Even though Brad Williams forgetting के साथ इतना हम relate नहीं करते, because he actually did not have the forgetting bit, but that is why it is also important to know about this person, because यहाँ पे forgetting के नाम की चीज को challenge किया गया. Okay, the second name that is associated with forgetting is William James. So William James ने एक definition दी थी forgetting के लिए, not proper definition as such, but he made a statement. That statement was, if we remembered everything, we should in most occasions be as ill off as if we remembered nothing. तो इनका कहने का मतलब क्या था कि अगर भाई आप हर एक चीज को याद रखोगे तो ज्यादातर ओकेजन्स पे क्या होगा कि आपको बहुत परेशानी होगी, है ना. जैसे आपको परेशानी होती है जब आपको कोई चीज याद नहीं आती, व्हेन यू कीप ऑन फॉरगेटिंग सर्टेन थिंग्स, यू हैव ट्रबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, isn't it? You feel like अरे यार मुझे याद क्यों नहीं आ रही, you blame your memory, you cuss your memory and you say what not. But then if you actually remember everything, मतलब बचपन से लेके अभी तक पूरे लाइफ के इवेंट में अभी तक क्या हुआ है, परसों क्या खाना ब्रेकफास्ट में खाया था, या फिर 20th अक्टूबर को लंच में क्या खाना खाया था, या डिनर में क्या खाना खाया था. सो इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज ट्रिवियल डिटेल्स ऑल्सो, इफ यू एक्चुअली रिमेंबर एवरीथिंग, then that will also be a problem. So William James through this statement wanted to say कि forgetting एक natural aspect है जो सबके साथ होता है, and somewhere or the other it is also helping us relieve the burden of our memory system. Because if we are actually remembering everything that happens to us in this lifetime, then that will also be very troublesome. Okay, so this is another thing. If someday this kind of statement comes in MCQ, then you should know that who said it. It was said by William James, right? Then the third name that is associated with forgetting, and one of the most famous names associated with forgetting, is हर्मन एबिंगॉस. सो हर्मन एबिंगॉस के बारे में जिन लोगों ने साइकोलॉजी में मेमोरी का चैप्टर कभी भी पढ़ा है, तो हर्मन एबिंगॉस का नाम जरूर उन्होंने पढ़ा होगा. सो हर्मन एबिंगॉस इज वेरी वेरी फेमस फॉर one thing, that is his curve of forgetting. सो काफ़ी लोग जो है वो मेमोरी के ऊपर बातें कर रहे थे, मेमोरी के ऊपर रिसर्चेस कर रहे थे कि मेमोरी कैसे काम करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट एवरीबडी इग्नोर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी, दैट इज फॉरगेटिंग. किसी ने फॉरगेटिंग पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि एक्चुअली फॉरगेटिंग कैसे होती है, या फॉरगेटिंग का कर्व कैसा होता है, एक इन्फॉर्मेशन लर्न करने की कितनी देर बाद आप उसे फॉरगेट कर जाते हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो हर्मन एबिंगॉस ट्राइड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, he was actually the first person to study forgetting. He was the first person to study all about the forgetting and the nature of forgetting. So for that, what did he do? He did certain experiments, and in those experiments he himself was the subject. इन्होंने experiments में क्या किया, इन्होंने nonsense syllables create किए. We will not be diving in very details of the experiment because we are covering a Sisreli book, that is
डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड वी आर फोकसिंग ऑन एग्जाम्स दैट आर MCQ बेस्ड. सो हम लोग उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करेंगे. ओके, सो एक्सपेरिमेंट्स में हर्मन एबिंगॉस ने क्या किया, नॉनसेंस सिलेबल्स क्रिएट किए. नॉनसेंस सिलेबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, you have GEX, this is a nonsense syllable, or you have WOL, this is a nonsense syllable. So nonsense syllables are जहाँ पे जो कि आपके थ्री लेटर्स से कंबाइन होके एक वर्ड बनता है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स एंड द लेटर इन बिटवीन इज अ वोवल. Okay, so again, first and last letters are consonants. The letter in between is a vowel. You can also make any nonsense syllables. For example, M, O, P. Okay, this will not be a nonsense syllables because this makes a meaning mop. Nonsense syllable वो होता है जिसमें first में और last में आपके पास vowel हो, फर्स्ट और लास्ट में आपके पास कॉन्सोनेंट हो और सेंटर में वॉवल हो एंड इट डज नॉट मेक एनी मीनिंग. Okay, so for example, let's say N and then O and then X. So this is a word knocks that does not make any meaning, जो कि probably किसी भी डिक्शनरी में as such कोई word नहीं है, in English dictionary at least. And N at the first place is a consonant, X at the last place is a consonant, and in between them is a vowel. So that is what is known as a nonsense syllable, जहाँ पे ऐसे words को हम use करें जिनका कोई meaning ना हो. And why do you think Hermann Ebbinghaus made use of nonsense syllables? इन्होंने nonsense syllables इसीलिए use करे ताकि किसी भी तरीके का जो verbal association है वो ना हो पाए. Okay, in order to avoid verbal associations, he made use of nonsense syllables. Now, what do we mean by verbal associations? तो बेसिकली हर्मन एबिंगॉस अपने एक्सपेरिमेंट में देखो करना क्या चाहते थे. व्हाट ही वांटेड टू डू, ही वांटेड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दीज नॉनसेंस सिलेबल्स, कि भाई एक पूरी की पूरी शीट ले ली और उसमें से 1 to 20 तक नॉनसेंस सिलेबल्स लिख लिए, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 20. सो देयर आर 20 नॉनसेंस सिलेबल्स एंड देन ही वुड टेक दिस लिस्ट एंड गिव इट टू हिमसेल्फ बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एंड ही वुड मेमोराइज दिस लिस्ट. Okay, so nonsense syllables की list बना ली, he would memorize this list and then he would wait for some time. Okay, then he would wait for some time and after some time he would try to retrieve what he has memorized. कि भाई जो भी अभी 1 से लेके 20 तक इन्होंने nonsense syllables के list को याद किया है, उसमें से अब कितना उनको याद आ पा रहा है. हो सकता है उनको सिर्फ 5 words याद आ पाए या फिर सिर्फ 4 वर्ड्स याद आ पाए फ्रॉम द 20 लेटर्ड लिस्ट. देन ही वुड डू द सेकेंड ट्रायल. सेकेंड ट्रायल में व्हाट ही वुड डू, ही वुड अगेन मेमोराइज, देन वेट फॉर सम टाइम, देन रिट्रीव इट अगेन. एंड ये जो वेटिंग का टाइम है, he varied these waiting times. Sometimes he waited for just 10 minutes after memorizing the list and he tried to retrieve. Sometimes he waited for an hour after memorizing the list and then tried to retrieve. Sometimes he would wait for a complete day, for example your 24 hours, and then try to retrieve the list. तो उन्होंने ऐसे टाइम के साथ प्ले किया so as to properly understand कि कितने इंटरवल के बाद ये रिट्रीवल डिफिकल्ट हो रहा है या इजी हो रहा है. So that is what he tried to do in his experiments. Okay, created list, memorized, waited for some time, retrieved that, and then repeated these experiments with different kinds of time intervals. अब यहाँ पे कमिंग बैक टू आर टॉपिक ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स को क्यों यूज किया, इसीलिए यूज किया क्योंकि इनको कोई वर्बल एसोसिएशन नहीं चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे वर्ड्स बना देती लिस्ट में लाइक कैट, बैट, मैट, तो इनको लर्न करना इज मच इजियर देन लर्निंग वर्ड्स लाइक GEX, WOL, NOX, है ना, isn't it? If I tell you to learn words like cat, bat, mat, it would be much easier for you as compared to learning words like jex, wall, knocks, है ना. Why? Because ये जो second list में आपके words हैं, these are known as nonsense syllables. They do not make any meaning for you. इसीलिए आप इन वर्ड्स को अपने माइंड में किसी भी और वर्ड या किसी भी और इवेंट के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पाओगे, और एसोसिएट नहीं कर पाओगे तो लर्निंग जो है वो बेटर नहीं हो पाएगी. वेराज जो वर्ड्स आपके लिस्ट 1 में है वो वर्ड्स यू कैन एसोसिएट. एक तो वो राइम कर रहे हैं, कैट, बैट, मैट. सेकेंडली यू ऑल्सो आर एबल टू फॉर्म अ पिक्चर ऑफ दीज वर्ड्स, है ना. कैट बोलते ही माइंड में एक पिक्चर आ जाती है. मे बी यू कैन ऑल्सो फॉर्म अ स्टोरी विद दीज वर्ड्स कि कैट आई, उसको बैट लगा तो उसको मैट पे लिटा दिया. ओके, समथिंग लाइक दैट. सो
Ebbinghaus actually wanted to avoid this kind of verbal association which was possible in these everyday words. वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हैम्पर हो. He actually wanted to see the real forgetting that happens, not the normal forgetting, because learning words like these is very easy. So therefore, in order to avoid any kind of verbal associations, Hermann Ebbinghaus ने क्या किया? Hermann Ebbinghaus ने भाई nonsense syllables का use किया. He memorized the list, he waited for some time and he again tried to retrieve it. और इस सारे के सारे प्रोसेस में ही एंडेड अप मेकिंग दिस फेमस कर्व ऑफ फॉरगेटिंग. ठीक है, इस प्रोसेस से उनकी कर्व ऑफ फॉरगेटिंग निकल के आई. अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो कर्व एक्चुअली क्या थी. ठीक है, उन्होंने ग्राफ ही बिल्ड कर दिया था. सो लुक एट दिस वाज द कर्व ऑफ फॉरगेटिंग और द फॉरगेटिंग कर्व दैट वाज गिवन बाय एबिंगॉस. ओके, सो यहाँ पे आपकी एक्सिस है, योर वाई एक्सिस, योर एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे आपका मेमोरी रिटेंशन है कि कितना परसेंटेज रिट्रीव हो पाया मेमोरी से लिस्ट का. एंड दिस एक्स एक्सिस शोज द इलैप्स्ड टाइम, यानी कि कितने टाइम बाद वो चीज रिकॉल करने की कोशिश की. एंड दिस इलैप्स टाइम इज इन टर्म्स ऑफ डेज. ओके, सो फर्स्ट डे के बाद, सेकंड डे के बाद कितना याद हुआ, थर्ड डे के बाद कितना रिट्रीव हो पाया. सो फॉर एग्जांपल टुडे, okay, today you have learned something about memory models. okay, you thought कि चलो आज बैठ के memory models की वीडियो देखते हैं जो पार्ट 3 है चैप्टर 6 का, या पार्ट 2 है चैप्टर 6 का, एंड वील स्टडी ऑल ऑफ दीज मेमोरी मॉडल्स. तो आज आपने सारे मेमोरी मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया. अकॉर्डिंग टू एबिंगॉस होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग आपकी होगी दैट विल हैपन विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग. ओके, इजंट इट वेरी सरप्राइजिंग कि भाई अभी आपने वीडियो देख के खत्म किया है मेमोरी मॉडल्स का. सपोज आपने शुरू किया था वीडियो देखना एट 3 PM इन द आफ्टरनून एंड यू फिनिश्ड वॉचिंग द वीडियो एट 4 PM. आपको लगा भाई 3 से 4 1 घंटा बड़ी अच्छी पढ़ाई कर ली है, अब जाके थोड़ा चिल करते हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं. ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस 6 बज जाते हैं. And then you again sit and try to study something else, some other paper of psychology or some other subject. But Ebbinghaus के according जो चीज आपने 3 से 4 बजे अभी पढ़ी है, जो भी आपने अभी मेमोराइज किया है, उसका सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग कब होगा? इसके अगले 1 घंटे में, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में ही there would be most of the forgetting that would be happening. So therefore a lot of people on the basis of the forgetting curve that was given by Ebbinghaus suggest कि जैसे आपने एक चीज पढ़ी है उसके विद इन 1 आवर आप एक रिविजन कर लो. यू डू द फर्स्ट रिविजन विद इन 1 आवर ऑफ इट. सो 3 से 4 बजे अगर आपने मेमोरी मॉडल्स की वीडियो देखी है, सो आफ्टर 4 o'clock ओनली, यानी कि 4 से 5 के बीच में, वेदर आप ब्रेक लेना चाहते हो यू टेक अ ब्रेक, है ना, 4:15 तक you take a break and at 4:15 you once again quickly glance through what you have studied in that video. That is why I keep on emphasizing कि notes बनाते रहो, revise करना easy हो जाएगा. ठीक है, तो आप उसी 1 घंटे में अगर अपना फर्स्ट रिविजन रख लोगे then the rate of forgetting would be a little less for you, because Ebbinghaus का ये golden चीज है. ओके, एमसीक्यूज में भी ये चीज आ जाती है कि फॉरगेटिंग सबसे ज्यादा कब होती है? विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लर्निंग. जब आपने लर्न किया है उसके बाद का जो 1 घंटा होता है दैट इज सो क्रूशियल कि उसी में सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग होती है. सपोज यू गो टू ट्यूशंस. ओके, यू गो टू ट्यूशंस एंड ट्यूशन में आपने 1 घंटे की ट्यूशन होती है यूजुअली, वहां पे जाके आपने 1 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ाई करा. ओके, एंड आफ्टर दैट यू कम बैक होम, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, प्रोबेबली 2 घंटे आपको ट्रैवल करने में लग गए, पूरा आराम से गाने सुनते हुए ट्रैवल करते हुए आ रहे हो. एंड देन जो आपने ट्यूशन में पढ़ा था उस वक्त तो सब कुछ समझ आया, बट विद इन दैट 1 आवर इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड व्हाट यू एक्चुअली स्टडीड, तो उसका 50 या 70% या आधा पोर्शन खल्लास हो चुका है. ओके, whatever you have studied has actually gone into the forgetting zone, और आपको फिर से उतना ही एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा उस चीज को लर्न करने के लिए जितना आपने शायद फर्स्ट टाइम पुट इन किया था. So this is how the forgetting curve looks like. कि शुरू में if you see the line or the slope is so steep, isn't it? ये आप देखो जहाँ पे black line follow हो रही है, follow this black line. In the beginning the slope is so steep, यानी कि जो first 1 hour होता है आपकी
आपकी लर्निंग के बाद का, दैट इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फॉरगेटिंग, मोस्ट ससेप्टेबल टू फॉरगेटिंग। और उस 1 घंटे के बाद इवेंचुअली आपकी जो इंफॉर्मेशन है या जो फॉरगेटिंग है वो थोड़ी स्टेबलाइज होने लग जाती है, वो इतनी ज्यादा क्विक रेट पे ड्रॉप नहीं करती। सो इमीडिएट रिकॉल तो आप तुरंत कर लोगे। जैसे 3 से 4 बजे आपने वीडियो देखी, 4 बजे कोई आपसे पूछे कि आपने क्या पढ़ा, यू विल बी एबल टू इमीडिएटली रिकॉल एंड टेल द पर्सन मैंने ये पढ़ा। ठीक है, विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, यानी कि 4:20 तक काफी फॉरगेटिंग हो चुकी होगी। एंड देन अगर आप 5 बजा देते हो एंड यू डू नॉट रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन 3 to 4, तो मैक्सिमम फॉरगेटिंग हो चुकी होगी। एंड इफ समबडी आस्क्स यू आपने क्या पढ़ा, प्रॉबेबली यू विल स्ट्रगल अ लिटिल टू एक्चुअली टेल कि आपने क्या पढ़ा। बट इफ यू रिवाइज ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 1 hour ओनली, इफ यू वंस अगेन ग्लैंस थ्रू क्विकली ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड इन दिस 1 hour ओनली, तो उसके बाद अगर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तो फॉरगेटिंग जो है एक स्टेडी रेट पे होगी। Okay, so forgetting basically happens quickly within your first hour after learning. बट देन उसके बाद जो है वो फॉरगेटिंग टेपर ऑफ धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा बीत गया बहुत भूल गए, अगला घंटा बीत गया बहुत भूल गए। नो, इट इज ओनली द फर्स्ट 1 hour आफ्टर लर्निंग दैट इज वेरी वेरी ससेप्टेबल टू फॉरगेटिंग। आफ्टर दैट फॉरगेटिंग आपकी बहुत ग्रेजुअली टेपर ऑफ होती है। So that is the concept that the curve of forgetting was telling us. And who gave this curve of forgetting? It was given by Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus ने कैसे identify किया इसे? With the help of the experiments that he conducted. और उसमें उन्होंने मेक यूज किया था नॉनसेंस सिलेबल्स का। ही हिमसेल्फ वाज द सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट ही फाउंड आउट कि अरे फॉरगेटिंग तो ऐसे होती है एंड दिस इज अ काइंड ऑफ कर्व पैटर्न दैट फॉरगेटिंग एक्चुअली फॉलोज। ठीक है, सो इन द बिगिनिंग, इन द फर्स्ट 1 hour of your learning, you are most susceptible to the concept of forgetting, and after that your forgetting is tapering off gradually. So therefore एक इन्होंने सेंटेंस भी पुट फॉरवर्ड किया था, एक स्टेटमेंट भी पुट फॉरवर्ड किया था, that forgetting is greatest. This is a very ironical statement. I always find it very ironical. So forgetting is greatest just after learning. ठीक है ना? सो ये एक स्टेटमेंट है जो काफी फिट बैठ रहा है फॉरगेटिंग कर्व के साथ भी। एंड एबिंगहॉस सेड कि फॉरगेटिंग सबसे ज्यादा कब होती है, राइट आफ्टर यू हैव लर्न समथिंग। सो मेक श्योर आज की वीडियो देखने के बाद से आप इस साइकोलॉजी को अपने लर्निंग में प्लीज अप्लाई कीजिए, है ना। प्लीज देखिए कि कैसे रिविजन्स को टाइम आउट एंड स्पेस आउट कर सकते हो। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फील कि यार इतना सारा कैसे पढ़ते जाएंगे, अभी पढ़ा है फिर उसको रिवाइज करने में इतना टाइम। एक्चुअली रिवाइज करने में इतना टाइम लगता नहीं है जितना आप सोचते हो। ओके, इफ यू हैव मेड नोट्स वाइल लर्निंग, सो रिवाइजिंग इज लाइक 10 or 15 minutes। ठीक है, आप क्विकली उन चीज़ों को ग्लांस थ्रू कर लो एंड व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग एट रेगुलर इंटरवल्स द टाइम एक्चुअली रेड्यूसेस अ लॉट। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। आज की वीडियो देखने के बाद जो 1 घंटा होगा, उसी 1 घंटे में जो आज पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज कर लेना। फिर कल सुबह उठोगे तो सुबह उठते ही एक बार फिर से रिवाइज कर लेना and then you can revise after 4-5 days. You will not forget a lot. Okay, so this was the another name that was associated with forgetting. So we have talked about Brad Williams hyperthymesia, ठीक है, विलियम जेम्स का जो स्टेटमेंट था, हर्मन एबिंगहॉस का जो कर्व ऑफ फॉरगेटिंग है। नाउ वी विल कम टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? रीजंस दैट वी फॉरगेट। ओके, क्या रीजंस हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं, ये रीजन पता होना बड़ा जरूरी है। हर्मन एबिंगहॉस के अकॉर्डिंग तो क्या रीजन है भाई चीजें भूलने का? रीजन ये है कि विद इन फर्स्ट आवर अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप भूलोगे। ठीक है, ओवर टाइम अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप भूलोगे। बट व्हाट आर सम ऑफ द अदर रीजंस ऑफ वी फॉरगेटिंग व्हाट एवर वी हैव लर्नड अर्लियर? तो एक थ्योरी जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उस थ्योरी का नाम है मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी। Okay, sometimes it's also simply known as trace decay theory. So it is memory trace decay theory. So this is one of the reasons why we forget. So memory trace decay theory हमें simply क्या कहती है? That whenever you learn something, okay, whenever there is a memory that is formed, whenever a memory is formed, what happens? A physical change happens in our brain. Okay, physical change in our brain, and this physical change is actually known as memory trace.
तो मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई भी मेमोरी फॉर्म कर रहे हो, कोई भी चीज लर्न कर रहे हो, एंड इन दैट प्रोसेस यू आर फॉर्मिंग अ मेमोरी, a physical change happens in your brain and that physical change is known as memory trace, यानी कि आपके ब्रेन में उस मेमोरी का एक ट्रेस बनता है. ओके, एंड मेमोरी ट्रेस डीके क्या है, दैट इफ यू डू नॉट यूज दिस ट्रेस, ओके, इफ नॉट यूज्ड, देन व्हाट विल हैपन, दिस ट्रेस विल डीके, है ना. ट्रेस डीके हो जाएगा भाई. अगर एक बारी आपने कुछ चीज लर्न करी और उस चीज का ट्रेस आपकी मेमोरी में बन गया, बट आप फिर से उस इंफॉर्मेशन को कभी यूज ही नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग प्रोबेबली दैट इंफॉर्मेशन अगेन, या फिर आपका उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम नहीं है सो यू आर नॉट यूजिंग इट, या फिर प्रैक्टिकली आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं भी यूज नहीं करें, फॉर वॉट एवर रीजन, इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन अगेन or not revising that information again, then the trace that was formed in your memory, that physical change that was there in your memory would with over time decay. Okay, it would decay over time or it would fade over time into nothing, and as a result of that you will experience forgetting. सो दिस इज एज सिंपल एज इट कैन बी. ठीक है, सबसे सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को. मेमोरी ट्रेस डीके थ्योरी, इस थ्योरी के नाम में ही इसकी एक्सप्लेनेशन है कि मेमोरी का जो ट्रेस बनता है, whenever you learn something, your physical change happens in brain, that is the memory trace. जब आप उस memory trace को over time use नहीं करोगे, revise नहीं करोगे उस information को, तो वो trace decay हो जाएगा या fade हो जाएगा, as a result of which there is forgetting that happens. ठीक है, that is why the forgetting happens because of the disuse of trace, because there is no use. So here often a term is used, that is use it or lose it. ओके, तो या तो आपने जो मेमोरी बनाई है इतनी मेहनत से, उस मेमोरी ट्रेस को बनाया है, या तो उसे कॉन्स्टेंटली यूज करते रहो, रिवाइज करते रहो, अदरवाइज यू लूज इट, योर डीके will happen of that trace will fade away and you will eventually forget, you will struggle to retrieve any kind of information that you earlier remembered. तो ये एक रीजन है कि हम क्यों forgetting experience करते हैं. The second reason of why we experience forgetting is known as encoding failure. तो एनकोडिंग एक ऐसा टर्म है जो जब हमने इस मेमोरी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑन दैट डे इटसेल्फ वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एनकोडिंग, है ना. एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, द थ्री गोल्डन प्रोसेसेस ऑफ आवर मेमोरी. अ क्वेश्चन दैट इज आल्सो आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक गेट. सो एनकोडिंग का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि आपकी इन्वायरमेंट से आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में आ जाए, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग. बट एनकोडिंग फेलियर क्या होता है, व्हेन यू एक्चुअली देयर फेल, और व्हेन देयर इज अ फेलियर टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी. ओके, सो अगर जो इंफॉर्मेशन आपको याद करनी थी वो इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी में गई ही नहीं, देन हाउ विल यू रिट्रीव इट. सो दैट इज एनकोडिंग फेलियर, कि वो कभी इंफॉर्मेशन एनकोड हुई ही नहीं. दैट इज व्हाई यू हैव नॉट you are not able to retrieve it. अब memory trace decay theory से ये कैसे different है? memory trace decay में encoding तो हुआ था, because there was a memory trace that was formed, but now you did not use that information, that is why the forgetting has happened. बट एनकोडिंग फेलियर में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको अपने इन्वायरमेंट से मेमोरी के स्टोरेज तक लेके आनी थी, वो इंफॉर्मेशन मेमोरी के स्टोरेज सिस्टम तक प्रोसेस हो ही नहीं पाई, वो मेमोरी तक पहुंच ही नहीं पाई. Therefore, there was a failure in encoding. There was a failure in that entire process of processing the information. And hence, now when you try to retrieve that information or recall that information, you are unable to retrieve that information. ठीक है? So that is your encoding failure. That also explains one of the reasons of why we forget. अब आप बहुत सारे ये explanations देखोगे and don't get confused that which explanation is the correct one. No one explanation is correct. All of them are used in all of them are used together to explain. Then the third explanation that we have for the reason we forget is an important one, और इसमें से बहुत सारे questions भी आते हैं एग्जाम में. so that is your interference theory. ठीक है, इंटरफेरेंस थ्योरी एक और एक्सप्लेनेशन है. ये क्या कहती है कि जो मेमोरीज हमारे LTM में होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है, वो मेमोरीज जरूरी नहीं कि हमेशा हमारे लिए एक्सेसिबल हो. Okay, that means it is not important that the memories that are there in our long term memory are always accessible to us, because
जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे मेमोरी में है वो compete करती है उस इंफॉर्मेशन के साथ, वो इंटरफेयर करती है. सो सी द मेमोरी स्टोरेज. ठीक है, मेमोरी स्टोरेज है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ, योर एक्सपीरियंसेस, योर स्टडीज, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेशंस, your occupation, your career, your home, your country, your politics, your games, your interest, कितनी सारी चीजों के बारे में मेमोरी है. सो इंटरफेरेंस थ्योरी कहती है कि ये सारी मेमोरीज जो हैं वो आपस में फाइटिंग करती रहती है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती रहती है. बिकॉज दे कीप ऑन इंटरफेयरिंग विद ईच अदर, देयरफॉर वी फॉरगेट. ठीक है, सो दैट इज द बेसिक फंड ऑफ इंटरफेरेंस थ्योरी कि क्योंकि आपस में ही जो हमारी मेमोरीज हैं, जो इंफॉर्मेशन है, वो फाइटिंग करती रहती है, इंटरफेयर करती रहती है एक दूसरे के बिजनेस में. देयरफॉर वी आर अनेबल टू रिकॉल और रिट्रीव एनी इंफॉर्मेशन. अब इंटरफेरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग दो तरीकों की इंटरफेरेंस हो सकती है. वन इज नोन एज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड अनदर इज नोन एज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. अब यहां से इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसमें से बहुत ज्यादा, एक्चुअली बिलीव मी, मार्क माय वर्ड्स, बहुत ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं related to proactive interference and retroactive interference. So try to understand the difference carefully. और किसी एक को भी अगर आप समझ जाओगे ना, अगर सपोज आप प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को समझ गए, then don't put much effort in understanding retroactive. just understand कि प्रोएक्टिव अगर समझ गए तो रेट्रोएक्टिव उसका ऑपोजिट है, रेट्रोएक्टिव समझ गए तो प्रोएक्टिव उसका ऑपोजिट है. ठीक है, सिंपल एज दैट. सो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है कि जो हमारी प्रीवियस मेमोरीज हैं या जो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं वो मटेरियल इंटरफेयर करता है. ठीक है, प्रीवियस मेमोरीज इंटरफेयर करती हैं हमारे न्यू मेमोरी के रिट्रीवल में. जस्ट राइट इट व्हाट एज आई एम राइटिंग, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज. ठीक है, so your old memories interfere in the retrieval of your new memories. For example, ठीक है, इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर वापस इस डेफिनेशन पे आते हैं. अगर आप एग्जाम्पल समझते हो तो डेफिनेशन समझना ज्यादा इजी होगा. सो कभी ऐसा हुआ है, अभी जो हमारा पास्ट ईयर था वो 2022 था, तो द पीपल हु हैव अ हैबिट, या फिर स्कूल में जब हमारी हैबिट होती थी कि कोई भी क्लास के नोट्स लिखने से पहले हम डेट लिखते थे. सो फॉर एग्जाम्पल 14th August 2022 मैंने डेट लिख दी. बट सडनली क्या है कि थोड़े वक्त बाद नेक्स्ट ईयर आ जाता है जो कि 2023 है, एंड नाउ आई हैव टू मेक अ न्यू हैबिट. I have to make a new habit of say writing 1st Jan 2023. बट क्या होता है कि जब नया साल लिखने का डेट आता है तो बार बार हम एक ही गलती करते हैं, 2022 लिख देते हैं. 2nd Jan आया तब भी गलती से 2022 लिख दिया, बट फिर अगेन हमें उसे इरेज करके 2023 लिखना पड़ता है ना. सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव डन, कि जब नया साल आता है और डेट लिखने की बारी आती है, वी अगेन एंड अगेन मेक द सेम मिस्टेक ऑफ राइटिंग द प्रीवियस ईयर इंस्टेड ऑफ द न्यू ईयर. So why does this happen? One of the explanation is of proactive interference. कि proactive interference की वजह से आप जो है forget कर रहे हो, नया साल आ चुका है. तो यहाँ पे हुआ क्या, जो आपकी old memory थी, old memory क्या थी of writing the year 2022, that old memory or that old learned material has actually interfered with your new memory. अब आप न्यू मेमोरी बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, 2023 लिखने की कोशिश कर रहे हो बार बार, बट क्योंकि जो चीज आप पिछले एक साल से लिखते आ रहे हो 2022 वो आपकी एक ओल्ड मेमोरी बन चुकी है, वो ओल्ड मेमोरी आपकी नए मेमोरी को घुसने ही नहीं दे रही अपने जंगल में. ठीक है, वो ओल्ड मेमोरी घुसने ही नहीं दे रही नए मेमोरी को और बनने ही नहीं दे रही उस नए मेमोरी को. सो यू कीप ऑन अगेन एंड अगेन राइटिंग 2022. मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक लोगों के साथ यही होता रहता है, बट इवेंचुअली न्यू मेमोरी ऑल्सो मेक्स इट स्पेस एंड देन यू बिगिन राइटिंग 2023 ऑल्सो. Another example could be probably क्लास फर्स्ट से लेके 7th क्लास तक आपने जो है फ्रेंच लैंग्वेज लर्न की थी, एंड नाउ यू आर इन 2023, यू आर ट्राइंग टू लर्न अनदर लैंग्वेज, दैट इज जर्मन लैंग्वेज. अब फ्रेंच लैंग्वेज में डॉग का एक पर्टिकुलर वर्ड होता है
जर्मन लैंग्वेज में डॉग का एक पर्टिकुलर वर्ड होता है. सो होता क्या है कि मे बी वन डे somebody asks you that you know what is dog known as is in German और what is the German word for dog. और आप गलती से क्या बोल बैठते हो, गलती से आप वो फ्रेंच वर्ड बोल देते हो जो डॉग को यू नो फ्रेंच में जो डॉग को बोलते थे आप वो बोल देते हो. सो व्हाट हैज हैपेंड अगेन, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हैज हैपेंड, क्योंकि जो आपकी ओल्ड मेमोरी थी, फ्रेंच तो आप याद करके अच्छे से पक्का करके अपने दिमाग में रख चुके हो ना, सो वो ओल्ड मेमोरी अब इंटरफेयर कर रही है. जर्मन आप अभी नया नया पढ़ना सीख रहे हो, नई नई मेमोरीज बना रहे हो इसकी, बट ओल्ड मेमोरी इंटरफेयर्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ योर न्यू मेमोरीज विद द रिट्रीवल ऑफ योर न्यू मेमोरीज. Clear? So this is the process of proactive interference. Coming back to this thing कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो old memories है, what are these old memories doing? These old memories are interfering in the retrieval of your new memories. तो आपके न्यू मेमोरी का रिट्रीवल जब होना डिफिकल्ट हो क्योंकि आपका एक ओल्ड मेमोरी ऑलरेडी फॉर्म्ड है, तो वो होता है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस को हम फॉरवर्ड मूविंग भी बोलते हैं. व्हाई डू यू थिंक इट इज नोन एज फॉरवर्ड मूविंग? because over here the forgetting is actually moving in the forward direction. अगर इस तरीके से आपको याद हो सके then also it will be good. okay, forgetting यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ओल्ड से न्यू के टूवर्ड्स द forgetting is moving. न्यू मेमोरीज का forgetting हो रहा है, ओल्ड का तो नहीं हो रहा है. so that is your proactive interference. Now coming to the second type of interference, भाई अभी ही I am giving you the disclaimer कि proactive interference समझ आ चुका है, तो retroactive पे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सुन लो, because retroactive is just the opposite of it. तो कोई भी एक याद रखो, दूसरा is the opposite. okay, retroactive interference में the opposite is happening. तो इस चीज को अगर हम टर्न कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो न्यू फॉर्म्ड मेमोरीज हैं, जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड मेमोरीज हैं, वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं भाई. ओके, दे आर इंटरफेयरिंग विद रिकॉल और रिट्रीवल ऑफ ओल्ड मेमोरीज. ओके, तो रेट्रो का मतलब ही ओल्ड होता है ना, तो रेट्रो मतलब इज ओल्ड ओनली लाइक द रेट्रो सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो रेट्रो इन इटसेल्फ मींस ओल्ड. तो यहाँ पे फॉरगेटिंग किसकी हो रही है, ओल्ड मेमोरीज की हो रही है. प्रोएक्टिव में प्रो मतलब बड़े नए जनरेशन के लोग प्रो यूज करते हैं, न्यू जनरेशन पीपल यूज दीज वर्ड्स लाइक आई एम प्रो एट दिस, आई एम प्रो एट दैट, है ना. सो प्रो मतलब न्यू मेमोरीज का रिट्रीवल नहीं हो पा रहा है, न्यू मेमोरीज का रिकॉल नहीं हो पा रहा है. एंड रेट्रोएक्टिव में रेट्रो मतलब ओल्ड, यानी कि ओल्ड मेमोरीज का रिकॉल नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज भाई जो हमारी न्यू मेमोरीज हैं वो बड़ा इंटरफेयर कर रही हैं ओल्ड मेमोरीज के रिकॉल में. सो इस केस में क्या हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंच याद कर चुके थे, ठीक है, और अब आप जर्मन याद कर रहे हो, एंड somebody again says the same thing. this somebody is very irritating, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं आके, ठीक है, कि भाई डॉग का जर्मन वर्ड बताओ मुझे, जर्मन में डॉग को क्या बोलते हैं, और आप जो है ओके दे से फ्रेंच में डॉग को क्या बोलते हैं, दिस टाइम नॉट जर्मन. ओके, दे से कि फ्रेंच में डॉग को क्या बोलते हैं बताओ. तुमने तो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास में फ्रेंच ही पढ़ी है, तो क्या हुआ अभी जर्मन पढ़ रहे हो, तो बट पहले तो फ्रेंच पढ़ी है. टेल मी व्हाट डू वी से डॉग इन फ्रेंच, बट यू एंड अप सेइंग द वर्ड दैट इज इन जर्मन. तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हुई कि आपने जो अभी रिसेंटली चीज याद की थी जर्मन में कि जर्मन में डॉग को ये पर्टिकुलर थिंग बोलते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट डू वी से बट व्हाट एवर इट इज. ओके, तो ये चीज हम बोलते हैं, तो वो नई मेमोरी इंटरफेयर कर गई आपकी ओल्ड मेमोरी के रिकॉल में. ओल्ड चीज जो आपको पता थी फ्रेंच में डॉग को क्या बोलते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता था, वो आप रिकॉल यहाँ पे नहीं कर पाए. सो दैट विल बी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. Another example of a very interesting example of retroactive interference could also be रोल नंबर्स के साथ ये बड़ा होता है ना, कि जैसे आप अपनी नई क्लास में आए, सो यू गेट अ न्यू रोल नंबर, और जो पुरानी क्लास में था उसमें एक आपका ओल्ड रोल नंबर था. सो एज सून एज नाउ यू आर इन अ न्यू क्लास, यू गेट अ न्यू रोल नंबर, एनीबडी आस्क्स यू कि आपका रोल नंबर क्या है, यू विल रिकॉल ओनली दिस न्यू रोल नंबर. कोई अब आपसे पूछेगा कि अच्छा पुरानी क्लास में आपका क्या रोल नंबर था, यू विल हैव अ हार्ड टाइम रिकॉलिंग दैट. या फिर प्रॉबेबली यू आर राइट नाउ इन कॉलेज और आप एक बारी स्कूल में भी थे, तो स्कूल में जो आपका रोल नंबर था वो अब ओल्ड हो चुका है,
कॉलेज में जो आपका रोल नंबर है वो ऑलरेडी न्यू है, सो समबडी आस्क यू कि रोल नंबर क्या है आपका, तो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपके कॉलेज का रोल नंबर ही निकलेगा. स्कूल का रोल नंबर रिकॉल करना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. वो शायद आप बहुत लोग भूल भी चुके होंगे. ठीक है, आई कार्ड निकालना पड़ेगा फिर से याद करने के लिए उस चीज को. सो दिस इज नोन एज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वेयर इन माई न्यू मेमोरीज दे आर इंटरफेयरिंग नाउ. ठीक है, प्रोएक्टिव में तो ओल्ड मेमोरीज इंटरफेयर कर रही थी, रेट्रोएक्टिव में नई मेमोरी इंटरफेयर कर रही है. किसके साथ इंटरफेयर कर रही है? ओल्ड इंफॉर्मेशन के रिकॉल में इंटरफेरेंस आ रही है, जिसकी वजह से जो पुरानी चीज मैंने याद की थी वो मैं फिर से रिकॉल नहीं कर पा रही. Are we clear with interference theory? Again and again I'm saying this is a very important portion from exam point of view, from your net entrances point of view, gate entrances, UET PG, जितने भी MCQ based entrances होते हैं उनके लिए बहुत important है. So interference theory के proactive interference and retroactive interference are the two portions. In general, the three theories that we talked about the reasons why we forget. तो आपकी मेमोरी ट्रेस डीके, कि आपकी मेमोरी का जो ट्रेस है अगर यूज नहीं करोगे तो डीके हो जाएगा. सो ईदर यू यूज इट और यू लूज इट इन टर्म्स ऑफ फॉरगेटिंग. देन द सेकंड थिंग वी टॉक्ड अबाउट वाज एनकोडिंग फेलियर, कि अगर इंफॉर्मेशन आपके मेमोरी सिस्टम में प्रोसेस ही नहीं हुई देन हाउ विल यू एक्चुअली रिट्रीव इट. सो एनकोडिंग में अगर फेलियर है तो फिर फॉरगेटिंग हो जाएगा. एंड थर्ड एंड द फाइनल वन दैट वी सॉ वाज योर इंटरफेरेंस थ्योरी, जहां पे मेमोरीज आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करने लग जाती है. Okay, so proactive and retroactive. Remember any one of them, other one will be easy. Retroactive को हम एक और चीज, retroactive को हम backward moving बोलते हैं. Now again, why backward moving? क्योंकि यहाँ पे ये पुरानी information के towards जा रही है ना, it is moving towards the old memories. Proactive was forward moving because it was moving towards the new memories ka direction. The forgetting was moving in the forward direction of new memories. In retroactive, the forgetting is moving in the backward direction of old memories. वो old memories को forget करा रहा है. Okay? So alright everyone, that is it for today's video. Make sure guys you do all of these three things. ठीक है, channel को subscribe करो, video पसंद आई है तो like करो, and अपने friends and family के साथ share करो, especially your psychology mates. Share the video with them so that they also learn a thing or two about the chapter of memory and other things in general. And in case you have any doubt, anything to share, the comment section is always open for you guys. And आज जो हमने Herbin Abigos के forgetting curve में पढ़ा है, try to implement that in your daily life and let me know if that is successful for you, if that revision method helps you in retaining information. Till then, have a very good day. We'll meet tomorrow, and tomorrow we will be completing our chapter 6. So have a good day and bye-bye.